Dear students, today's story is about the genius of the world who changed this world, and his brain was stolen after his death for research work. If you want to imagine his intellect, his intelligence, let's read this chapter, A Truly Beautiful Mind. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. It means Albert Einstein had taken birth on 14th March 1879 in a German city. Its name was Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को एक उल्म शहर में हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness. At that time, he had no indication that he would achieve greatness, and it was written in his luck that he would achieve greatness. इसका मतलब बिना किसी निशान के दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस कि उनकी किस्मत में महानता थी. ऑन द कंट्रेरी एट द सेम टाइम उसी वक्त हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, दैट अल्बर्ट वॉज अ डेलार्ड. अल्बर्ट एक मंदबुद्धि बालक थे. उसकी मां ने सोचा टू हर हिज हेड सीम टू लार्ज बिकॉज शी नोटिस दैट हर हेड वॉज वेरी लार्ज when it was compared to an average child. उसे ऐसा लगा कि उसका सर बहुत बड़ा था. At the age of 2.5, when he was 2.5 years old, जब वो 2.5 साल के थे, Einstein wasn't still talking, that he was unable to talk at that time. वो उस वक्त बातें नहीं कर पा रहे थे. When he finally did learn to speak, and when he started to speak, जब उन्होंने आखिरकार बोलना सीखा, he uttered everything twice. He used to say everything 2 times. वो हर चीज को 2 बार कहा करते थे. Einstein didn't know, and Einstein was not aware what to do with the other children. He did not know how to play with other children. वो आइंस्टाइन को नहीं आता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आए. And his playmates called him brother boring, and at that time his playmate, the boys and girls who used to play with him, they called him brother boring because he was very boring creature. So the youngster played by himself much of the time, so he used to play alone most of the time. ज्यादातर वो अकेले ही खेला करते थे. He especially loved mechanical toys, and he was very fond of playing with mechanical toys. उन्हें mechanical toys से बहुत ज्यादा प्यार था. Looking at his newborn sister, जब उन्होंने अपनी नई बॉर्न सिस्टर को देखकर, when he saw his newborn sister Maja, he is said to have said, at that time it was said that he said, fine, but where are her wheels? ये अच्छी है लेकिन इसके पहिए किसके हैं, पहिए कहाँ हैं. मतलब he wanted to know where were her wheels, उसके पहिए कहाँ थे, because she thought that her sister was a toy and he was very much interested in mechanical toys. A headmaster once told his father, it was told by headmaster to his father, that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, that if Einstein choose anything as a profession, and it would not matter for him because he will never make a success at anything, because he will not achieve success. एक बार हेडमास्टर ने बताया कि जो कुछ आइंस्टाइन एक प्रोफेशन के तौर पर चुनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सफलता नहीं पाएगा जो भी वो चुनेगा. आइंस्टाइन began learning to play violin at the age of 6. When he was 6 years old, he started to play a violin. तो 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, बिकॉज इट वॉज कीन डिजायर ऑफ हिज मदर दैट ही शुड लर्न टू प्ले वायलिन, क्योंकि उनकी माँ ऐसा करना चाहती थी. ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में वो बन गए एक गिफ्टेड अपने इंटरेस्ट के लिए वायलिन बजाने वाले. एंड ही वॉज अमेच्योर वायलिनिस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल violinist. He used to play for his own interest, maintaining this skill throughout his life, and he maintained this skill throughout his life. अपनी पूरी जिंदगी भर इस अपनी कला को मेंटेन करते रहे. But Albert Einstein was not a bad pupil. He was not a bad student. He went to high school in Munich. When he went to the high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old. When he was 15
months old, at that time his family went to Munich. 15 महीने की उम्र में वो म्यूनिच चले गए थे. स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट एंड ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, सो ही गॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट. हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए. आइंस्टाइन हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन. आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक स्कूल्स रूल एंड रेगुलेशन. आइंस्टाइन स्कूल के कायदे कानून को पसंद नहीं करते थे. एंड सो ऑफन क्लैश्ड विद टीचर एंड ही यूज्ड टू क्वेरल विद टीचर्स. और उनका टीचर के साथ झगड़ा हो जाया करता था. एट द एज ऑफ 15 व्हेन ही वाज आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टफल्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर हिज गुड एंड ही फेल्ट सो सफोकेटेड एट दैट टाइम ही लेफ्ट द स्कूल फॉर हिज गुड. वो स्कूल में इतना ज्यादा परेशान महसूस करते थे कि उन्होंने अपनी भलाई के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन. अल्बर्ट्स के पेरेंट्स मिलन चले गए. हिज पेरेंट्स वेंट टू मिलन एंड लेफ्ट हिज सन विद हिज रिलेटिव्स एंड ही वाज लेफ्ट विद हिज रिलेटिव्स. उन्होंने अपने बेटे को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन गॉट हिज विश फुलफिल्ड दैट ही वुड कंप्लीट हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड. उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति पाई कि वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे. इन अ city which was more liberal than Munich and it was a city which had more freedom than Munich. ये एक ऐसा शहर था जहां पर म्यूनिच से ज्यादा आजादी थी. आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics. He was a brilliant student in mathematics and interested in physics and he was quite interested in physics में भी interested थे. After completing his school education he decided to study at a university in Zurich. It was his decision that he would continue his study at a university in Zurich. स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ज्यूरिच की एक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे. बट साइंस wasn't the only thing. But it was not only science that appealed to the dashing young man with warless mustaches. इन चौड़ी मूछे वाले एक डैशिंग यंग मैन को साइंस ही एक केवल ऐसी चीज नहीं थी जो प्रभावित किया करती थी. ही वॉज इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स टू. वो दूसरों चीजों में भी इंटरेस्टेड थे. ही ऑल्सो फेल्ड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ fellow student Maliva Merrick. He had a classmate, her name was Maliva Merrick and he took special interest in her. वो अपनी साथी स्टूडेंट में स्पेशल इंटरेस्ट रखा करते थे जिसका नाम मेलिवा मैरिक था. whom he found to be a clever creature and whom he found that she was a clever creature. कि वो एक चालाक प्राणी थी, उन्हें ऐसा लगता था. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was the only one of few in Europe where women could degree and she was a Serbian girl. She had come to Switzerland to get a degree because it was a university in Zurich that provided degree to the women. ये जवान सर्बिया की लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी जो ज्यूरिच में थी वो औरतों को डिग्री दिया करती थी. आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फेलिस्टाइंस. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसमें एक साथी की तलाश करी जो फेलिस्टाइंस आर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड म्यूजिक एज सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स एंड स्कूल मेट्स एंड फ्रेंड्स वर. जैसा कि उनके कुछ साथी फेलिस्टाइन थे जो म्यूजिक और लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे, लेकिन इस लड़की में उन्हें एक साथी दिखाई दी जो ऐसी नहीं थी. And at the university with whom he was constantly at odd. यूनिवर्सिटी में कुछ लोग ऐसे थे जो म्यूजिक और आर्ट को पसंद नहीं करते थे. वो फेलिस्टाइंस टाइप के लोग थे जिनके साथ वो हमेशा झगड़े पर रहते थे. The couple fell in love. At that time both of them fell in love. दोनों को प्यार हो गया. Letters survive in which they put their affection into words. After some time they started to send letters and their affection grew in words.
because it was the letter where words were written with affection, mixing science with tenderness, and science was also mixed there because some discussion about scientific theories was also done there. वो भी वहां पर किया जाता था, मतलब साइंटिफिक थ्योरीज का भी डिस्कशन प्रेम पत्रों में हुआ करता था उनके. अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट और वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. हम लोग कितने खुश होंगे जब हम अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक जीत वाले निष्कर्ष पर निकाल करके लाएंगे. He said that they would be very happy at that time when their theory on relativity would achieve success. In 1900, at the age of 21, when he was 21 years old in 1900, 1900 में जब वो 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed. At that time, he got a degree from a university, but he was still unemployed. अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे लेकिन बेरोजगार थे. He worked as teaching assistant and gave private lessons. He used to work as an assistant teacher and he also gave private lessons. वो काम किया करते थे एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर और प्राइवेट लेसन्स दिया करते थे. एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एंड एट लास्ट इन 1902 ही गॉट अ जॉब. 1902 में आखिरकार उन्हें एक नौकरी मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट की नौकरी मिली. आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट. एट दैट टाइम व्हेन ही वाज डूइंग हिज जॉब in the patent office, he was developing his own idea on many theories. It was one of them was theory of relativity. और जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक उनका आइडिया था, काम करने के साथ साथ वो अपने खुद के आइडियाज को डेवलप कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट द वर्क ऑफिस. ऐसा कहा जाता है कि एक बार उन्होंने कहा था मजाक के तौर पर अपने डेस्क ड्रॉयर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. ही यूज्ड टू कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स बिकॉज देयर वर द फॉर्मूलाज, साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ फिजिक्स दैट वर इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स इन दैट ड्रॉयर. उस ड्रॉयर में उनके थ्योरीज, उनके फॉर्मूलाज, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर रखे होते थे, इसलिए वो मजाक में उसे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स भी कहा करते थे. वन ऑफ the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. आइंस्टाइन के पेपर्स में से एक पेपर जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था was published in 1905, according to which time and distance are not absolute. In that he cleared that time and distance were not absolute at every place. जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि टाइम और डिस्टेंस हर जगह बराबर नहीं होते. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. He also proved that two accurate clocks will not show the same time, कि दो सही चलने वाली घड़ियां भी सही समय नहीं दिखाएंगी. if they had come together again after a journey, अगर वो यात्रा के बाद वापस आती हैं एक जर्नी पर, one of them had been moving very fast relative to the other. one of the watch will move fast when it is compared to the other watch. उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक दूसरे की अपेक्षा ज्यादा तेज चल रही होगी. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला. इसी से उन्हें दुनिया का मोस्ट फेमस फॉर्मूला मिल गया विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. एंड ही गेव अ मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड हिज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी एज इट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला दिया. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन फिजिक्स में सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, when he was making a solution for the problem in physics, at that time his private life was unraveling. His private life was not going on smoothly. उनकी प्राइवेट जिंदगी फेल होने लगी थी. Albert had wanted to marry Maliva right after finishing his studies. अल्बर्ट चाहते थे कि पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद वो मैलिवा मैरिक से शादी कर लें. It was his keen desire to marry Maliva Merrick just after his studies.
बट इट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। हिज मदर वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर मैरिज। शी थॉट मेलिवा वॉज 3 years older than her son and was too old for him and she was very old for him। वो 3 साल बड़ी थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मेलिवा's इंटेलिजेंट and she was also confused about her intelligence। वो उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में भी बहुत ज्यादा टेंशन लिया करती थी। She was a book like you and it was her statement that Maliva Merrick was a book for Albert Einstein। वो कहा करती थी कि वो तुम्हारे लिए एक किताब की तरह है। His mother said Einstein put the wedding off और आइंस्टाइन पोस्टपोन हर मैरिज। आइंस्टाइन ने अपनी शादी को डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में उस पेयर ने आखिरकार शादी कर ली। व्हेन इट वाज 1903 द कपल मैरिड एट दैट टाइम एंड 2 sons वर born ऑफ देम एंड हैड 2 sons और उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज faltered। बट आफ्टर फ्यू इयर्स मैरिज was a failure। लेकिन कुछ साल बाद शादी फेल हो गई। मेलिवा meanwhile was losing her intellectual ambition। At that time Meliva Merrick felt that she was losing her intelligence। मेलिवा मैरिक को ऐसा लगा कि वो अपनी इंटेलिजेंसी को खो रही हैं। becoming an unhappy housewife and she thought she became an unhappy housewife और होने लगी थी एक नाखुश गृहिणी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919। After many years of quarreling or fighting, and the pair finally divorced in 1919। लगातार झगड़ों के कुछ साल बाद उस जोड़े ने 1919 में डाइवोर्स ले ली। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। एट द सेम ईयर अल्बर्ट आइंस्टाइन मैरिड हर कजिन एल्सा। उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा के साथ शादी कर ली। आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसाइडेड विद राइज टू द वर्ल्ड फेम और आइंस्टाइन का एक नया पर्सनल चैप्टर की शुरुआत हुई जिसको यश के साथ दुनिया में ख्याति मिली। इन 1915 में he had published his journal theory of relativity and his paper of relativity was published in 1915। 1915 में उनका पेपर पब्लिश हो गया theory of relativity पर which provided a new interpretation of gravity and she gave a new explanation of the theory of relativity to the world। दुनिया को ग्रेटिविटी थ्योरी के ऊपर एक नया एक्सप्लेनेशन उन्होंने प्रदान किया। eclipse of the sun in 1919 when it was an eclipse। 1919 में सूर्य ग्रहण जब पड़ा ब्रॉड प्रूफ दैट ही वाज एक्यूरेट। इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि वो सही थे। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम द फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही तरीके से कैलकुलेट किया था, इस बात की गणना एडवांस में कर रखी थी कि किस मात्रा में लाइट जो फिक्स स्टार से आती है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी जब वो सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स से होकर के गुजरेगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड द न्यूज़पेपर अनाउंस्ड दैट इट वाज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। न्यूज़पेपर ने उनके काम की घोषणा कर दी कि ये एक साइंटिफिक क्रांति थी। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। इन 1921 ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के लिए। He was showered with honors and invitation from all over the world। उनके ऊपर बारिश होने लगी सम्मान की और आमंत्रण की पूरी दुनिया की तरफ से and lauded by the press और प्रेस ने उन्हें दुनिया में उनकी गूंज मचा दी। When Nazis came to the power in Germany in 1933, when it was 1933, Nazis came to the power। You must have known about Hitler। Hitler came to the power and he and his army was called Nazis। आइंस्टीन इमाइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट और आइंस्टाइन उस वक्त चले गए यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड एन अमेरिकन फिजिकिस्ट इन एन
अप्रोर। 5 साल बाद जब न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई तब अमेरिका के फिजिक्स वाले लोग दहाड़ने लगे, एंड इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फिजिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स दैट न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड, सो they were lauding for their discovery. Many of them had fled from the fascism, and many persons had run away from the fascism, just as Einstein had. Einstein also had done the same. Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb, and they were also afraid that the Nazis would make a bomb and they will use the bomb on many कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई देशों पर यूज कर सकते थे। वो उस बॉम्ब को नाजीज चुपके से बॉम्ब बना लेंगे और वो उसका यूज करेंगे। एट द अर्गिंग ऑफ ए कॉलीग एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज मेट, अपने साथी की एक रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। ऑन 2 अगस्त 1939 आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इफ अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन द पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके के बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया जाता है तो सराउंडिंग टेरिटरी के साथ वो एरिया भी बर्बाद हो जाए। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन ने डेवलप कर लिया एटॉमिक बम एक चुपके से अपने प्रोजेक्ट में। ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। इन द year of 1945, American dropped the bomb on two Japanese cities. Their names were Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima और नागासाकी पर उन्होंने उस बम को अगस्त 1945 में गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of this destruction. इस बहुत बड़ी तबाही से आइंस्टाइन को बहुत गहरा धक्का लगा। This time he wrote a public missive to the United Nations. इस बार उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही proposed for the formation of the world government, in which he gave a proposal to make a world government, जिसमें उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए। एंड अनलाइक द लेटर टू द रॉसवेल्ट, ये उस रॉसवेल्ट के लेटर की तरह नहीं था। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, जिसका कोई असर नहीं पड़ा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले आने वाले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, एंड आइंस्टाइन राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर द एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और औजारों के बनाने के अंत के लिए अपनी एक मुहिम चलाई। यूजिंग, और उनके यूज के लिए। हिज पॉपुलरिटी टू द कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उनकी कैंपेन, उनकी मुहिम शांति और प्रजातंत्र के लिए। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब 76 साल की उम्र में आइंस्टाइन 1955 में निधन हो गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड एट विजनरी, तो उन्हें एक विजनरी के रूप में मनाया गया, दूरदर्शी। वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, दुनिया का नागरिक और उससे भी ज्यादा एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में। ही वॉज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी बट ऑल्सो अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ साइंटिफिक जीनियस, सो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ such a great scientist who was a genius for centuries and centuries. So dear student, it was explanation and translation. Thank you very much for watching this video. Subscribe my channel.